is new, I want to do this, I want to do that. And then I was told to slow down, relax. Digital जो है वो help कर सकता है और वो किस तरीके से problem solve कर सकता है. It's not enhancing your customer experience, don't do it. You know? Just because everyone is doing. Just because everyone is doing. फन्ने खान बन जाते हो कि भी मुझे तो बड़ा पता है. तो उस टाइम पर ना आपको ज़रूरत होती है कि कोई आपको बताए कि नहीं तुम्हें नहीं पता. आप बिजनेस ही नहीं कर सकते. फॉरगेट अबाउट मार्केटिंग. आप कन्वर्शनल तरीके से बिजनेस नहीं कर सकते. Which gave like an opportunity for digital marketing. Education is not a business. उनको पकड़ा तो दिया है टूल, तो अब उनको हेल्प करो बजाय कि आप बैन कर दो. उनको इंस्पायर करो कि ये कैसे यूज़ करना है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है. ये भी मैंने आई डोंट इवन वांट टू साउंड लाइक कि भाई आप बड़े एलिटिस्ट हो कि ये कंटेंट अच्छा नहीं है. दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग. हर चीज़ पर अब ये एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हो गया कि भाई आपने बहुत पैसे लगा दिए हैं और रिजल्ट बिल्कुल थोड़ा सा आता है. सम थिंग्स वर्क आउट, सम थिंग्स डोंट, बट देन यू हैव टू टेक द रिस्क ऑफ एटलीस्ट डूइंग इट. Assalamu alaikum everyone. I am your host Wasif Hussain and I welcome you to another episode of Tangent, the podcast series where we're trying to understand कि design और creative industries के अंदर पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है. I'm really sort of happy that now I have someone who's not just working as a marketing consultant, marketing advisor, but is very aware of emerging technologies in marketing as well. She's worked with skincare brands, she's worked with global companies as well, but then she's someone who understands के एक business के leaders के साथ कैसे काम करते हैं, how to convince them and how to deliver the promised things. इससे ज़्यादा फिर मैं introduction नहीं दूंगा. I think we can ask her कि वो क्या क्या चीज़ें करती हैं. अस्सलाम वालेकुम हुमैरा. वालेकुम सलाम. Thank you so much for having me. Thank you so much for coming to our podcast. It's really nice to have you. नहीं, it's a pleasure. बिल्कुल. हुमैरा, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि अभी आप क्या कर रही हैं, and what sort of things that you do. So basically, I'm working as a digital marketing consultant. I've been working in the field of marketing since 2018, जब मैंने graduate किया from Lahore School of Economics. Since then, मैं इसी field के अंदर, I've been working. So I worked with different brands in the fashion industry, मतलब the fashion and textile industry, beauty, food, education. So I've been able to gather a little bit of a holistic experience working with different people. And after that, now I have, I'm now more focused on developing a business where I'm working as a consultant. I'm helping brands with their marketing, especially their digital marketing. So that is a little bit about myself. I started in 2018 when I graduated. I started working with a non-profit organization, Seed Out. I was working as a business development executive. That was my first ever job. Over there, I had the pleasure of working with a very good mentor, Miss Fiza Farhan. I would like to mention her here. She was the only Pakistani to be on the UN's Women Economic Empowerment panel. For me, she was someone who taught me how to work, what is work ethic, what is, proper work ethic, professionalism, and how to give something your 100%. आपने अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, आपने जिनके लिए आप काम कर रहे हैं उनको सेटिस्फाई कैसे करना है, और जो काम है उसको आपने कैसे प्रॉपरली करना है. And being a woman, I think she was somebody who I could relate to more because, she was, she's very dynamic, so it was very good that I worked with her, and that was my first job. Over there, I got a lot of opportunities जहाँ पे उन्होंने मुझे forefront पे डालना शुरू किया, and they chose me to represent the company wherever, जहाँ पे कोई grant के लिए pitch करना होता था या किसी donation के लिए pitch करना होता था. So they saw something in me. उनको लगा कुछ ऐसा कि they would actually encourage me, and they really put me on the forefront, जिसकी वजह से मेरा confidence बहुत early on develop हो गया. And in 2018, I also started working with Pasha. Over there, I worked as part of the marketing team. तो वो एक बहुत बड़ी, obviously, वहाँ से Seed Out से जब मैं when I left Seed Out, then I moved to Pasha. And उधर I've been working. Abhi tak I am with Pasha, and I am still working as part of their marketing team, especially digital marketing ki. Initially, obviously, it was a very new thing for them, digital marketing, because they were a fabrics brand. They are a luxury fabrics brand. Fabrics एक ऐसी चीज़ है जो आप online, especially कपड़ा online बेचना थोड़ा सा challenging होता है.
Now, obviously, it's different, but before COVID, the scenario was completely different. तो फिर मैं उधर उनके पास I worked, and then I've also worked at Arvalon, जहाँ पर I worked as part of their customer care department, part of their sales and marketing team, जहाँ से मैंने बहुत experience gain किया, especially one-on-one customers के साथ deal करके, and I brought that experience back to Pasha because I've been rooted with them since 2018. And then I've also worked with education में नसीम खान consultancy के साथ उनकी I was their marketing head. I designed their marketing strategies for different उनके जो periods थे जिस time पर like when students receive their results or crunch time periods और इस तरह की चीज़ें. अब ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ about everything. You're going good. हाँ. Because my follow-up question normally is कि tell us about your journey, but you're going really amazing. चलें ठीक है, मैंने कहा मैं पहले बता दूँ, इसको going on and on and on. सही से नहीं, that's amazing. Please हाँ जी. please carry on. तो वो फिर इसके साथ ये है कि उसके बाद I've also एक फूड का है बोल फुल ऑफ कंफर्ट, उनके लिए मैंने उनकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई. एंड देन इग्नाइटफुल एक छोटे से उन्होंने भी अभी स्टार्ट किया एज एड टेक प्लेटफॉर्म, उनके साथ मैंने काम किया. सो आई रियलाइज दैट पीपल आर अप्रोचिंग मी देमसेल्व्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आपका ये नेटवर्क बढ़ता जाता है. पीपल हेयर अबाउट द वर्क यू आर डूइंग, पहले फैमिली देखती है, फिर फ्रेंड्स देखते हैं, फिर वो किसी को रेकमेंड करते हैं, फिर वो किसी को रेकमेंड करते हैं. तो उस तरह से मेरा काम, मेरा प्रोफाइल डाइवर्सिफाई होती जा रही थी. बट एट द सेम टाइम पाशा के साथ मैं थ्रू आउट रूटेड रही, एंड आई हैव बिन वर्किंग विद देम. तो उसके अंदर आई लर्नड अ लॉट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग और द पावर ऑफ द राइट काइंड ऑफ मार्केटिंग फॉर डिफरेंट फील्ड्स या इन डिफरेंट फील्ड्स, जिससे मेरा एक्सपीरियंस बहुत डाइवर्सिफाई हुआ. इसके दौरान आई हैव ऑल्सो बिन ब्लेस्ड विद रियली गुड मेंटोर्स बिकॉज आई वेंट टू इंग्लैंड फॉर अ शॉर्ट कोर्स. मैंने डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग में किया, फिर मैंने डिप्लोमा किया इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इन मार्केटिंग. वहाँ पे आई वुड लाइक टू मेंशन माय मेंटोर डॉक्टर मैरिलाना, हु इज़ अ प्रोफेसर एट इम्पीरियल, and she mentored me throughout, that what my career projection should look like, how I should move forward. She and I developed a relationship which went beyond professional. It wasn't just professional. It was a very, she and I became friends, so she was very happy with how I was and she wanted to see me progress forward. So she also invited me to lecture at the universities where she teaches. So I've lectured at University of Law London, Regent's University London, all related to branding and storytelling online and emerging technologies in marketing. Then when I came back to Pakistan, I was invited by PTV to talk about AI, and also now तो ये slowly थोड़ा speaking की तरफ भी जाना शुरू हो गया. But everything has been kind of coincidental, and I don't think I've planned it like that, but alhamdulillah, it's going well. So yeah, that's a little bit, not a little bit, but about myself. No, thank you so much, because like this gives us a really good walkthrough of of your journey, and then where you started off, and then the diverse experience that you had with different companies and organizations. Okay, so I think maybe we can now dive into marketing and digital marketing, because you specialize in emerging technologies in marketing as well. What sort of approach you have when you're working with your clients and your the people that you're advising? So basically होता ये कि आपके experiences और जिस तरह के लोगों के साथ आपने काम किया होता है और थोड़ी बहुत आपकी अपनी personality traits जो होते हैं, they shape the way you approach things, and they help you develop an approach, they help you grow as well. Because I worked with so many different brands जो different काम कर रहे थे, but I think the common thing with everybody was that all of them wanted the best and all of them wanted the best quality. Whatever जो भी हम कर रहे हैं, it has to be the best. स्पेशली पाशा में काम करने से मेरी एक ऐसी ग्रूमिंग हुई जो कहीं और शायद नहीं हो सकती थी, बिकॉज नथिंग वॉज ईजी to get through, nothing was easy to get, if you want to get something approved, it cannot just be done because you've said it. There has to be some research, there has to be some reasoning behind it, there has to be a lot of thinking behind it. Like, why are you proposing this a thing? lot of passion. A lot of passion. Yes. Okay? And then not doing things because everybody is doing them.
तो जब मैंने डिजिटल को स्टडी किया एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस फील्ड आई रियलाइज कि ये कितनी वंडरफुल कितनी मैजिकल फील्ड है, बिकॉज ये चीज़ों को कैसे हमारे लिए बेहतर कर सकती है। इनिशियली तो एज अ यंगस्टर आपका होता है कि ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, दिस इज़ न्यू, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट। And then I was told to slow down, relax. What you're saying is great, it's very nice, but why should we do it? हम क्यों AR यूज़ करें, हम क्यों VR यूज़ करें, रीज़न क्या है, क्यों? तो आई थिंक कोविड के अंदर दैट वाज व्हेन आई गॉट द रीज़न कि जब कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, दिस वाज समथिंग दैट हेल्प्ड कंपनीज नॉट ओनली सर्वाइव बट ग्रो। जिनके वो बने हुए ही नहीं थे डायमेंशंस, वो थे ही नहीं, सेटअप अगर है भी डिजिटल का तो चलो बस ठीक है जस्ट टू चेक वेबसाइट है क्योंकि एक टिक मार्क है। बट आपने देखा कि वो उसने आपकी हेल्प कितनी की, दैट हाउ डिड इट लेट यू, हाउ डिड अलाउ यू टू ग्रो सो मच। तो उस टाइम पे आई थिंक आई रियलाइज्ड कि किस तरीके से डिजिटल जो है वो हेल्प कर सकता है और वो किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और कस्टमर एक्सपीरियंस को इन्हांस कर सकता है। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। तो Yes. उधर से मेरी ये अप्रोच डेवलप हुई और आई थिंक एक तरीके से एक चीज़ मेरे अंदर एम्बेड हो गई कि अनटिल एंड अनलेस इट्स नॉट एडिंग वैल्यू टू योर बिजनेस, इट्स नॉट इन्हांसिंग योर कस्टमर एक्सपीरियंस, डोंट डू इट। Just because everyone is doing जस्ट it. बिकॉज एवरीवन इज डूइंग। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बड़े कई दफ़ा मीडियोकर ग्राफिक्स के साथ चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने एक हेडसेट दिखाना है, जस्ट बिकॉज उन्होंने चीज़ दिखानी, कई दफ़ा ग्राफिक्स भी नहीं मज़ेदार होते, वो मज़े की चीज़ भी नहीं लग रही होती और बस वो की होती है, जस्ट बिकॉज ये अगर हम करेंगे तो एवरीबडी विल टॉक अबाउट इट। लोग 5 दिन बाद कर देंगे, उसके बाद कोई और कर लेगा, फिर कोई और अपने तरीके से कर लेगा और वो वो चीज़ कभी रिफाइन नहीं होती। तो आई थिंक कि मेरी ये अप्रोच तब बन गई कि टेक्नोलॉजी इज़ समथिंग दैट कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, इट कैन मेक थिंग्स ईजियर एंड इट कैन ऑल्सो इन्हांस अ कस्टमर एक्सपीरियंस, बट अनटिल एंड अनलेस इट्स नॉट डूइंग दैट, डोंट यूज़ इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। स्पेशली इवन डिजिटल मार्केटिंग में भी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जो सोशल मीडिया है, इट्स नॉट देयर टू सेल थिंग्स, इट्स देयर टू एड वैल्यू टू योर एग्जिस्टिंग मार्केटिंग मॉडल, या जो भी आपने एग्जिस्टिंग ब्रांडिंग अपनी बनाई हुई है उसको वैल्यू ऐड करने के लिए वो सब टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं। फिर यू यूज़ देम इन द बेस्ट वे पॉसिबल। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव बीन एबल टू इस्टेब्लिश, जो भी छोटा मोटा मेरा एक्सपीरियंस है उसके अंदर। आई थिंक दिस इज़ रियली अगेन जैसा यू सेड कि वो डिजिटल मार्केटिंग जो है या जो सोशल मीडिया की जैसे आपने बात की कि इट्स देयर टू ऐड वैल्यू एज वेल। आई रिमेंबर वी वर वर्किंग विद द कंपनी देन इट टुक अस अ लॉट ऑफ टाइम टू कन्विंस देम, बिकॉज एक नॉर्म ये भी है कि हफ्ते में 16 पोस्ट आनी है या हफ्ते में 12 पोस्ट आनी है, ठीक है, एंड देन दे वुड डिज़ाइन देयर द होल टाइम लाइन कि अच्छा ये इस तरह करनी है और ये हफ्ते में कम से कम 3 तो होनी चाहिए। तो वही जो आपने वो बात की ना, जैसे अगेन आई थिंक वो जो आपने वो एक्सपीरियंस पाशा की बात की कि इफ़ इट्स नॉट एडिंग वैल्यू टू व्हाट यू आर ऑफरिंग और व्हाट यू आर सेइंग, डोंट डू इट। ठीक है, अब वो ही आई गिव दिस एग्जांपल टू सम ऑफ द पीपल दैट आई वर्क विद कि देखिए वो ऐसी ही बात है कि अगर आपने 16 पोस्ट करनी है तो वो आपने एक टाइमर लगा दिया है कि जैसे जैसे हम ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं एंड देन देयर इज समवन एल्स सिटिंग हियर, तो वो एक टाइमर लगा के उसने 5 मिनट बाद कोई भी बात करनी है। अब उसके पास बात करने के लिए है या नहीं है, लेकिन उसने कोई बात करनी है। सो इमेजिन ऑन अ ब्रांड्स परस्पेक्टिव और ऑन अ कंपनीज परस्पेक्टिव कि यू जस्ट हैव टू से समथिंग और यू जस्ट हैव टू कम्युनिकेट समथिंग जस्ट बिकॉज एवरीवन इज फिलिंग देयर टाइमलाइंस, है ना। सो हाउ सॉर्ट ऑफ मतलब वो कितना मतलब काउंटर इफेक्टिव हो सकता है ना, इंस्टेड ऑफ जिस तरह आपने अगर वो पाशा की एग्जांपल की देन आपने जैसे कोविड में उनको कन्विंस किया कि सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है, कैसे आपने वो चीज़ जो आप वैल्यू क्रिएट करना है वो कम्युनिकेट करनी है। ठीक है। यस। तो उसके अंदर देखें ये है कि वही आपकी वाली बात कि 16 पोस्ट लगानी है, ये करना है। जब मैं इस सारी चीज़ों से जब मैंने पढ़ा एंड आई केम, आप एक फ्रेश ग्रेजुएट होते हो, फिर आप 2-3 कोर्सेज करते हो, आपको लगता है आपने बड़ा कर लिया, आप कोई अगर इसी इंडस्ट्री में काम करना है, इसी इंडस्ट्री में रहना है, मतलब इवन अगर ग्लोबली काम करना है, एक आपके अंदर एक ठहराव या आपके काम, योर वर्क शुड स्पीक, लाइक वो क्या चीज़ है। तो 16 पोस्ट लगा रहे हैं किस बारे में,
किस चीज़ के लिए लगा रहे हैं, क्या है? क्या वो वही चीज़ है जो हम बार बार देख रहे हैं? तो क्या होगा, हम स्क्रॉल कर देंगे, लाइक कर देंगे, नहीं करेंगे। वो कौन सी पोस्ट है जिसके ऊपर आप रुक जाते हैं और आप कहते हैं वाओ, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये मैंने पहले नहीं देखी, या ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। आपकी सेंसिबिलिटीज़ को वो अपील करती है एज अ कस्टमर, आपकी सेंसिबिलिटीज़ को अपील करती है एज अ कंटेंट कंज्यूमर, कि आप वो रुक के, कई पॉडकास्ट होती हैं हम पूरी पूरे घंटे देख लेते हैं। कुछ तो होता है ना कि हम रुक के वो हमारा, हालांकि रिटेंशन टाइम कहते हैं इतना है, अब इतना है, बट वो कुछ तो होता ही है कि हम जो रुक जाते हैं, वो सब्सटेंस क्या है। तो उस सब्सटेंस के ऊपर फोकस करना, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और जब हम लोगों के इस जो आपने बात की कोविड की, आप चाह रहे हैं कि मैं एलैबोरेट करूं? हाँ, कोविड की जो आपने जो ट्रांजिशन की बात की थी कि वो जी। सो बेसिकली अब जिस तरीके से आई वाज वर्किंग विद पाशा, तो नाउ दे आर देर अ टेक्सटाइल ब्रांड, दे आर फैशन ब्रांड, और स्पेशली दे आर अ लग्जरी ब्रांड, जो सबसे हर चीज़ को डिफरेंट कर देता है। हर आपकी अप्रोच, हर आपके मार्केटिंग के आइडियाज़ डिफरेंट हो जाते हैं जब लग्जरी का वर्ड ऐड हो जाता है। और लग्जरी के अंदर आप कोई मैसी चीज़ नहीं बना सकते, आप कोई ऐसी चीज़ का आइडिया नहीं दे सकते जो रन ऑफ द मिल है या जो और लोग भी कर रहे हैं। दे वांट समथिंग जो लोग रुकें और कहें कि दिस इज़ ब्यूटिफुल, दिस इज़ लग्जरी, दिस इज़ समथिंग आई एम विलिंग टू पे सो मच फॉर, and something that sets them apart, not just in the Pakistani industry but globally वो ad ऐसा होना चाहिए कि वो कहीं भी चल जाए, वो वहाँ के लिए ठीक होना चाहिए, वो वहाँ की सेंसिबिलिटीज़ को भी अपील करना चाहिए, एंड इट शुड लुक ब्यूटिफुल। तो उसमें ये था कि जब हम कोविड हुआ, एंड आई द CEO, एवरीबडी वाज वेरी kind of confused that how are things going to go, because this is something that people come to the outlets, they come to the dealers, they get the fabric open, they look at it, and then they buy it. It's not something जो आप ऑनलाइन दिखा सकते हैं या आप कर सकते हैं। तो उसमें उनको कन्विंस करना कि अब हमने क्या करना है, लाइक व्हाट्स आवर प्लान गोइंग टू बी। क्योंकि मेरा डिजिटल का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, सो दे वांटेड कि अच्छा आप सजेशन दो, व्हाट शुड वी डू और हाउ शुड वी गो अबाउट इट। वन थिंग दैट आई लर्नड इन माई पास्ट एक्सपीरियंसेस, स्पेशली आई वर्कड विद अ स्किन केयर ब्रांड, उनके साथ जब मैंने काम किया था, तो मैंने ये देखा था कि हर कॉल हम उठाते थे, हर मैसेज हम रिप्लाई करते थे, हर कस्टमर को हम सैटिस्फाई करते थे। कस्टमर के कई दफ़ा घर प्रोडक्ट चला जाता था, वो खोल देते थे, वो कहते थे हमें तो ये नहीं चाहिए, फिर TCS वाले हमें कॉल कर रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं लेना। और उस टाइम पे हम CEO को आके कहते थे कि वो मतलब मसला बना हुआ है, वो कह रहे हैं कि हमने नहीं लेना, वो कह रहे हैं हमने इनसे नहीं लेना, लाइक TCS वाले कह रहे हैं हम खुला हुआ डब्बा नहीं वापस ले सकते। उन्होंने कहा आप ले लो, कोई बात नहीं। लोगों का अभी तक ट्रस्ट नहीं डेवलप हुआ पाकिस्तान में ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर करने में, लेने में। गिव देम द फ्रीडम, वापस ले लो, कोई बात नहीं, कॉल करो, पूछो क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, कई दफ़ा होता था हम कॉल करते थे एंड वी वुड से आप क्यों वापस कर रहे हैं, व्हाट्स द प्रॉब्लम। 2-3 मिनट उनसे बात की, उन्होंने कहा नहीं, अच्छा चले हम कन्विंस, चले हम रख लेते हैं। हमारे तो लोग भी इस तरह के हैं कि वो बातचीत से ही, वो एक ह्यूमन कनेक्शन आप देखिए हाँ, निकाल नहीं सकते किसी चीज़ में बिल्कुल से। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो जब पाशा पे मैं आई, तो उनको ये बहुत कंजर्वेटिव थे इस बारे में कि हम ह्यूमन एलिमेंट नहीं निकालना चाहते, बिकॉज लोग आते हैं, कपड़ा खुलवाते हैं, 3-4 बातें करते हैं, ये तरीका यही है। तो आप कह रहे हो कि अब तस्वीरें दिखा के बेचते हैं। सो हमने ये डिसाइड किया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू बी मेड अ प्रॉपर कस्टमर केयर का पूरा हमने एक सेटअप बनाया, कि जिसके अंदर हमने कहा कि ठीक है, ज़बरदस्त फोटोग्राफी होएगी, कपड़े को हर तरीके से, हर एंगल से कैप्चर किया जाएगा, तस्वीरें जैसे उनकी कैंपेन्स हैं, दे हैव अ वंडरफुल डिज़ाइन टीम एंड एवरीथिंग, वो जैसे बनाते हैं, जो करते हैं, वो वैसे के वैसे हम अपने चैनल्स पर हर जगह लगाएंगे। एंड देन वी विल केटर टू एवरीवन, whoever आपने अपनी ऑप्टिमाइजेशन करके सही ऑडियंस को टारगेट किया। जब उस ऑडियंस ने आपको रिस्पॉन्ड किया, देन यू विल सेटिस्फाई देम द मोस्ट, टू वट एवर यू कैन डू, यू विल डू। जिसमें लोगों के हमें इस तरह के क्वेरीज आने लगे। अब उसमें मैं बहुत क्लोजली वॉच कर रही थी कि हमें क्वेरीज क्या आती हैं, क्योंकि कोई और तरीका नहीं था ना मॉनिटर करने के लिए कि किस तरह पता चलेगा रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा आया। जब आया तो उसमें ये था, कलर नहीं पता लग रहा, फैब्रिक का वेट नहीं पता लग रहा, ये कौन सा फैब्रिक है और ये क्या है नहीं पता लग रहा, ये पहना हुआ कैसा लगेगा। अच्छा चलो, हमें फीडबैक आ गया।
अब हमने वो डिज़ाइन टीम से, फोटोग्राफर्स से, हर किसी से कम्युनिकेट किया। उन्होंने पूरी स्टडी की कि फैब्रिक को फ़ोटोग्राफ करने का तरीका क्या है, फैब्रिक का वेट कैसे दिखा सकते हैं। उसमें लाइट की पूरी स्टडी थी कि किस तरह की डिफरेंट लाइट पड़ेगी तो डिफरेंट शाइन आएगी, टेक्सचर कैसे पता लगेगा। बिल्कुल। इसके साथ साथ मॉडल्स को क्योंकि वो मॉडल्स करते नहीं हैं, उनका एक डिफरेंट अप्रोच है उसमें कि अच्छा ठीक है पहनावा ये कैसा लगेगा, वो भी कैप्चर करवाया, फिर उसको रन किया, वो फिर रन किया, फिर पता लगा नहीं हम देखना चाहते हैं, लाइक इतनी महंगी चीजें हम फिर भी देखना चाहते हैं। We still want to feel it. Because it's a very tactile experience. Exactly. Buying fabric is very tactile हाँ experience. जी, उससे ये था कि ऑब्वियसली सेल बढ़ गई हमारी, बट फिर भी कुछ लोग थे जो कहते नहीं हम देखना चाहते हैं। तो उस पे फिर हमारी ये अप्रोच थी कि ये भी तो होता है और होता था कि पहले वक्तों में शादियां होती थीं और जो आपकी महंगी तरीन शॉल्स कैशमेर की, शातूस की, वो फ़ोन करते थे एंड वो आपके पुराने उनसे ताल्लुकात होते थे, वो आपके घर आ जाते थे। कश्मीर से अक्सर लोग होते थे, आते थे एंड वो आपको खोल के दिखा रहे हैं। जैसे मैंने हमेशा देखा था कि मेरे नाना और मेरे दादा ऐसे ख़रीदते थे कि वो आ गए और उन्होंने पहले उनको चाय पिलाई, उनके साथ गप्पे मारी और फिर उनको बिठाया और वो सारी चीज़ें खुलीं और वो सब ने देखी और फिर कुछ ना कुछ ख़रीदा जाता था। तो मैंने कहा हम ये क्यों नहीं कर सकते, why don't we mix the two things, why don't we bring the traditional element in और मैंने कहा कि let's हमारी टीम का ये था कि let's do something कि जिसमें हम लोगों के घरों तक कोविड के अंदर पहुंचाएं चीज़ें। अब वो हमारा बंदा पूरी किट पहन के अपनी वैन में पूरा सामान ले के जाते थे और उनकी भी बहुत आई थिंक जिन्होंने लॉजिस्टिक टीम ने इसको मैनेज किया, बड़ी बात है। और वो जाते थे और जिसकी नहीं सेटिस्फैक्शन मीट होती थी उसको सारे प्रोडक्ट्स उधर दिखा देते थे कि भाई ये चीज़ है, ये है, ये है, वो है। अब वो बंदा अगर आपसे एक दफ़ा ले लेगा ना, वो आपसे हमेशा लेगा, क्योंकि उसने देखा है कि आप इस हद तक गए हो। एक कोविड के अंदर जो मतलब कि एक बहुत बड़ा उस टाइम पर थ्रेट था, पीपल वर लाइक इट वाज अ वेरी सीरियस थिंग एट दैट टाइम। तो इस हद तक एक कंपनी जा रही है हमें सेटिस्फाई करने के लिए, हमें चीज़ दिखाने के लिए। And these were people who are now all are our customers. They're the company's loyal customers कि उस टाइम पर इनको ऐसे अकोमोडेट किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पर जो हमारे टारगेट्स थे उससे ज़्यादा ही हमने मीट किया। तो वो एक आई थिंक बड़ा एक आई ओपनर था और कंपनी ने भी रियलाइज़ किया कि ओ इस प्लेटफॉर्म पे या इस डिजिटल जो है इसका बहुत, टेक्नोलॉजी को कह लें, डिजिटल भी मैं नहीं कहूँगी, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, सही चीज़ों के इस्तेमाल से हम बहुत आगे जा सकते हैं। और उसमें भी हमने ये किया कि इधर तक हम कर रहे थे कि कॉल्स पे हमारे बंदे उनको अटेंड करें। अगर मीनवाइल आई ऑल्सो सजेस्टेड कि हम वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं। वी मेक देम अ रूम वेयर आवर पर्सन इज सिटिंग, और बिकॉज एम्बियंस वो ही क्रिएट करनी है जो शॉप की है, तो उन्होंने कहा कि दैट्स नॉट पॉसिबल एंड इफ़ द पर्सन इज़ नॉट डूइंग इट द प्रॉपर वे, वी आर नॉट एबल टू क्रिएट द सेम एम्बियंस, तो वो एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा, लेट्स नॉट डू दैट। तो वो हमने नहीं किया। तो बट एट द सेम टाइम आई थिंक डीलिंग विद पीपल द राइट वे, मेकिंग श्योर दैट दे फेल्ट दे वर हर्ड, getting their feedback, altering the campaigns according to that feedback. At that time it was also because that was a constraint, and that was a time where you had to use these channels in order to sell, but I think they still did it their way. But then like I think the company and you convincing them to adapt as well कि अच्छा इट वाज अ चैलेंज कि अच्छा वो कोविड है और वो उस तरीके से कन्वेंशनल तरीके से वो आप बिजनेस ही नहीं कर सकते। फॉरगेट अबाउट मार्केटिंग, आप कन्वेंशनल तरीके से बिजनेस नहीं कर सकते, विच गेव लाइक एन अपॉर्चुनिटी फॉर डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल टूल्स के सेंस के अंदर। बट आई फाइंड इट रियली रियली अमेजिंग दैट हाउ यू सॉर्ट ऑफ विद योर प्रीवियस एक्सपीरियंस के यू सॉ कि अच्छा कस्टमर सर्विस जो है या कस्टमर सेंट्रिसिट एक जो अप्रोच है, दैट कुड बी लाइक इंटीग्रेटेड इनटू नॉट जस्ट मार्केटिंग, कि मार्केटिंग में जब आप कर रहे हैं तो इट शुड नॉट बी जस्ट वन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग कि जी अच्छा ये प्रोडक्ट है या ये ऑफरिंग है या ये सेल लगी हुई है, ठीक है। बट द अदर थिंग आई थिंक व्हाट यू विद एंटायर टीम ऑफ पाशा व्हाट यू गाइस डिड इज के retain that luxury experience, which is very very Important. at the Yes. core of the offering and the value of the product as well, but then the experience around that product, okay, it should luxurious. But I think वो customer centricity के अलावा वो जो human relation है
जैसे आपने वो बात की ना कि जैसे आप लोगों ने ये कहा कि जैसे वो पहले आते थे शातूस की शॉल लेकर, और वो लेकर आके वो बैठ रहे हैं, आप उनको चाय पिला रहे हैं, वो चीज़ कर रहे हैं, तो वो ट्रांजैक्शन तो है। they were the customers, they would purchase something, but they would get to know कि अच्छा ये आया है तो इनकी अब क्या चल रही है, क्या क्या सीज़न है वहाँ पर कश्मीर में, किस तरह की बातें हो रही हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। सो वो जो एक है जो एक अगेन ह्यूमन रिलेशन है या ह्यूमन एस्पेक्ट है, अ, अमूमन बिजनेसेस उस तरह की चीज़ को नहीं देख पाते, या वही समझते हैं कि इट शुड बी जस्ट अबाउट सेल्स एंड ट्रांजैक्शनल, ठीक है। बट आई थिंक एज यू वर सेइंग कि वो जब आपने ये चीज़ की और आपने कहा कि इसी एक्सपीरियंस को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, देन यू सेंड समवन टू द हाउसेज ऑफ द कस्टमर जो वो देखना चाह रहे हैं, देन यू फाउंड द रिजल्ट्स एज वेल, एग्जैक्टली है ना। जी तो आई थिंक that's really brilliant in the sense that like you guys not just adapt to the challenge, you guys evolved as well, but then retain the the ट्रेडिशनल एस्पेक्ट ऑफ इट traditional aspects of it, and then retain the luxurious aspect as well. Okay, एग्जैक्टली that Pasha fabric is different from what you can buy from elsewhere. आई थिंक ये जो आपने ह्यूमन कनेक्ट की बात की है ना, फॉर मी थ्रू आउट माई करियर and I felt that is something that's helped me, and that is something that's been there as an invisible hand. Human connect. So wherever I've gone, whoever I've worked with, wherever I've studied, because I'm somebody who I enjoys having a conversation, I enjoy connecting with people, not for any benefit, but just कि चलो आप कहीं हैं, आपके 2-4 घंटे अच्छे गुजर जाते हैं किसी से बात करने से. And when I was a very young, even when I was a child, तो सब कहते हैं कि आप बहुत बातें करती थी, एंड यू वर वेरी टॉकेटिव टू अ टाइम के लोग कहते हैं प्लीज़ आप थोड़ी देर चुप कर जाओ, जहाज़ में गए हो, दोस्त बना लिए हैं, लाइक दैट. And I used to think that maybe it's a negative thing that I talk so much, or I try and talk with people. किसी भी stranger के साथ बात कर ली. But it has helped me so much. I've never looked at it like that. I've never thought that ये लोग मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, या they're going to add value to me or my work. I've just enjoyed their company. And वही मेरे साथ शुरू में जो mentor मेरी थी at Seed Out, because I was able to, with her, it was still a very professional relationship, but it was something that I was there when she needed me, or I was there to even, we talked about different things. So she always recommended me wherever she thought कि I could do well. इसी तरह जब मैं इंग्लैंड में उनके साथ कोर्स किया, ये जो मेरी प्रोफेसर थी, she and I got along really well. And she said that I think you should come to Imperial, you should do a master's from here, and I would really like to meet your parents. तो वो हमारे उधर जहाँ हम रह रहे थे वहाँ आई, उन्होंने कॉफ़ी पी मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरी फैमिली के साथ, और उन्होंने कहा आप इसको बाहर भेजें पढ़ने के लिए. तो वो हम लोगों की फैमिली में उस तरह था नहीं उस टाइम पर कोई, बट like then that relationship became something that I'm still in touch with her. I message her for different things. उनके किसी भी उनके लिए उनकी कोई फैमिली में चीज़ होती है, मैं उनको मैसेज करती हूँ, मेरा होता है वो करती हैं. एंड देन उन्होंने मुझे बहुत ग्रूम किया professionally. She helped me so much, and she gave me so much exposure, so much experience, which I couldn't have gotten. वहाँ पर तो आपको कोई यूनिवर्सिटी में ऐसे without anything थोड़ी आने देता है या करने देता है, but she felt like her students could benefit from my experience, and I could benefit from that opportunity. But I would again bring that back to the human connect. तो वो चीज़ आप कभी भी, जो भी बिजनेसेस, जैसे आप कहते हैं ना कि शॉर्ट टर्म सक्सेस होता है और एक लॉन्ग टर्म लेजेंड्स होते हैं जो रहते हैं, दे स्टे, उनका हमेशा दे गो बियॉन्ड the business aspect. They go beyond the sale aspect. Yes, it's not just mere transaction. Exactly. It's the longer vision It's as well. the longer vision and the connect. जैसे कि आप कहो कि ये कपड़े मैं इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मेरे अब्बू पहनते थे, मेरे दादा पहनते थे, वो एक आपकी फैमिली के लिए वो चीज़ एक लेजेंड बन गई है, एक लेगेसी है. एग्जैक्टली. तो उसी तरीके से जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, जो जो बिजनेसेस के साथ मैंने काम किया है, आई हैव ऑलवेज स्ट्रेस्ड ऑन दैट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपिंग अ ह्यूमन कनेक्ट विद देयर कस्टमर्स. एंड even where education में जो मेरा एक्सपीरियंस है, where I worked with नसीम खान कंसल्टेंसी, तो उसमें भी ये है.
I think you said ke you've been really lucky to have worked with people who were really visionary as well. You had great mentors as well. I think I would also would like to mention two people from your journey. One is Kashif Nazir जी जी from Arvilon, आर्विलॉन जी बिल्कुल Arvilon, or then of course Imran Saab from Pasha Fabric. जी जी आई थिंक वही जैसे आपने वो बातें की, मैंने भी काशिफ साहब के साथ काम किया, इमरान साहब के साथ तो अभी काम नहीं किया, लेकिन काशिफ भाई की जो वो एक अप्रोच है ना, वो यही ये बात करते थे कि हमने कस्टमर्स को, स्किन केयर ब्रांड जो उनका आर्विलॉन है, वो ये कहते थे कि कस्टमर्स को हमने ऐसे ट्रीट करना है कि जैसे वो हमारी ही एक्चुअल फैमिली का बिल्कुल हिस्सा है। हिस्सा है और बिल्कुल अगर वो स्किन केयर ले रहे हैं तो उनके ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए वो ये फेयरनेस क्रीम ले रहे हैं, उनके बिल्कुल ये मसले इमोशनल साइकोलॉजिकल हैं, तो वो इसलिए फेस वॉश ले रहे हैं। तो बिल्कुल अगर इफ़ दे वांट टू सेंड इट बैक, तो डोंट कोई वरी, बात नहीं कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट, उनकी फ़िक्र करो। बिल्कुल तो आई थिंक वो एक अगेन ऐसे विजनरीज या ऐसे लीडर्स जो हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें इंस्टिल करते हैं। एंड देन अगेन व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम अदर कॉलीग्स, कि जैसे इमरान साहब भी हैं एट पाशा फैब्रिक, ही एंड हिज टीम, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन क्रिएटिंग लाइक मास्टरपीसेस। जी बिल्कुल दे आर वेरी कीन ऑन लाइक, हम्म मैंने तो सुना कि वो बहुत मटेरियल्स लेकर आते हैं, बहुत चीज़ें लेकर आते हैं, देन टीम को बुक्स आई विश माई बॉस वुड बाय बुक्स फॉर मी, or the people that I would work for, he brings with those books. But the thing is कि what he's trying to say, perfection and care, yes, luxury तो है ही है, जी जी business बिल्कुल sell करना है, but creating that value and being engaged in that, and वही पैशन वाली मेरे ज़हन में बात आती है। तो आई थिंक those two people that जी you said. बिल्कुल आई थिंक काशिफ साहब के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आर्विलॉन में। इट वाज लाइक अ फैमिली एंड उधर भी यही था कि उन्होंने बहुत सिखाया दैट वट एवर वो कहते थे कि मैं भी यहाँ बैठ के रिप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि कई दफ़ा हम कहते थे सर ये क्या है, हम सारा दिन बस ये करते रहते हैं, हम कुछ और भी हमसे करवाएं। तो सर मैं भी बेटा कर रहा होता हूँ रिप्लाई, सिर्फ आप नहीं करे। सो बट उधर से मैंने इतना सीखा कि कोई काम छोटा नहीं होता, और ये वाला जो काम है ना, जो बंदा रिप्लाई कर रहा है ना, उसके पास सबसे ज़्यादा इंसाइट है, उसके पास सबसे ज़्यादा इंसाइट है, वो आपका एसेट है। तो जब मैं पाशा में ये कोविड के दौरान हमने इम्प्लीमेंट किया, हमारी यही माइंडसेट था कि ये जो बैठ के रिप्लाई कर रहे हैं ना, इनको फुली ट्रेंड होना चाहिए, ये आपके सबसे बड़े एसेट्स हैं। फिर उनको मीटिंग्स में इन्वॉल्व करना कि आपको क्या क्वेरीज आए थे, वो क्वेश्चंस क्या थे, उनसे इंसाइट्स, एक्चुअल इंसाइट्स मिलती हैं आपको। एंड देन उधर एग्जैक्टली इमरान साहब का जैसे आप कह रहे हैं, ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट, बट देन वन थिंग अबाउट हिम इज़ दैट ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट वॉट ही डज़. And what he's been successful at doing is that he has been able to integrate that passion within his team. अब वो किस तरीके से कर रहे हैं, वो आप कह रहे हैं कि बुक्स ला रहे हैं या वो टाइम दे रहे हैं लोगों को, वो बात बिल्कुल ऐसे ही है कि इतने आर्टिस्ट के साथ काम करना, उनको मेंटेन करना, उन जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनकी काफ़ी आई वुडंट लाइक टू यूज़ एनी नेगेटिव वर्ड, बट दे हैव देयर ओन वे ऑफ वर्किंग। उनको वो लिबर्टी देना टू क्रिएट, टू इनोवेट, वो उनकी स्ट्रेंथ है। एंड आई थिंक मेरे साथ भी ऐसे था कि कई दफ़ा मुझे लगता था कि इनको मैं कैसे कन्विंस करूँगी, बाकी सब कन्विंस हो जाएंगे। लेकिन वो जब कन्विंस होते थे तो बड़ी अचीवमेंट फील होती थी कि अच्छा ये मान गए हैं। और फिर उसमें एक जो मैंने चीज़ उन्होंने मेरे अंदर इनकलकेट की, वो ये थी कि स्ट्राइव करो बेहतर करने के लिए, बेहतर करने के लिए, बेहतर करने के लिए। ये मत समझो कि अगर आप कुछ कह रहे हो ये सही है, आपको नहीं इतना पता, यहाँ बहुत लोग हैं जिनको बहुत पता है, उनसे सीखो एंड देन कम अप विद समथिंग। तो इन चीज़ों ने मुझे हेल्प किया व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद नसीम खान कंसल्टेंसी। दे आर एन एजुकेशन कंसल्टेंसी, यूके यूनिवर्सिटीज़ के साथ वो काम करते हैं। वो थोड़ा सा ग्लोबल एक्सपीरियंस था बिकॉज दे आर वर्किंग विद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, उनके कंसिस्टेंट मीट, मतलब वो लोग आ रहे हैं, तो यू आर ऑल्सो इंटरेक्टिंग विद दैट काइंड ऑफ क्लाइंटेल और वॉट एवर यू वुड लाइक टू कॉल इट। तो उधर भी जब मैंने काम करना शुरू किया, तो बिकॉज दे वर वर्किंग विद स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, तो जब आप स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ काम करते हो, यू नीड टू सेटिस्फाई देम, यू नीड टू, एंड अगेन यू नीड टू बिल्ड दैट ह्यूमन कनेक्ट, हाउ यू गोइंग टू डू दैट। तो उसमें भी जो आई फेल्ट के जो सबसे अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था, या जहाँ मैंने सबसे ज़्यादा आई फेल्ट के कंट्रीब्यूट कर सकी, वॉज ड्यूरिंग जब A लेवल रिजल्ट्स आते हैं,
and after that students either have met their conditional offers hoti hain, either they've met their conditions or they've done better than their condition or they've not met their condition. तो उनके उधर एक बिल्कुल chaotic सा environment होता है, because आप अपने ऊपर रख के you go back in that time जब रिजल्ट आ रहा है, आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ है, everything is that, all of your life is revolving around that. और जिनके पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी भी पूरी ज़िंदगी वही होती है कि बच्चे कहाँ घुस रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, and there to bring the right kind of audience through digital marketing to the company, and then to deal with them, how to deal with them, how to optimize their procedures. उसमें मैंने उनके साथ काम किया, because they are specialists, वो experts हैं, they know how to deal with parents and students. but वहाँ पर एक मैंने फील किया कि जब बहुत ज़्यादा students का रश आना शुरू हुआ from our digital, और जो भी हमने, और whatever they have, उनकी अपनी एक reputation है, तो जब वो आ जाते थे स्टूडेंट्स, और इस टाइम पीरियड पे बड़ा केओस होता था, that how we going to deal with them, and everybody is worried, everybody is anxious, सब चाहते हैं पहले हमसे मिलें, पहले हमारा केस डील करें, because this is the crunch period. तो उसमें आई फेल्ट कि टेक्नोलॉजी वाज प्रॉब्लम सॉल्वर, कि आई थॉट कि पेपर को हम बिल्कुल इरेडिकेट कर दें, एंड एवरीबडी कम्स एंड दे फिल फॉर्म्स, दे डोंट नीड टू डू दैट. आप एक सिंपल QR कोड रखें, वो आएँ, स्कैन करें. एंड दिस इज़ 2020 की मैं आपको बात बता रही हूँ, अभी मतलब 2021 गोइंग इनटू 2021 की बात है ये. तो हमने QR कोड रखा कि आओ आप स्कैन करो, सबसे पहले आप अपने ग्रेड्स डालो. वंस आपने ग्रेड्स डाल दिए, वो हमारी टीम के पास पहुँच गए हैं ऑलरेडी, ठीक है. अब उनको पता है कि आपको कहाँ से ऑफर्स आई हुई हैं, वो भी आपने मेंशन कर दिया है. सो दे नो एग्जैक्टली कि अब आपकी सिचुएशन क्या है. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने उनको दे दी कि उसी सिस्टम के थ्रू कि आपके जो ग्रेड्स हैं उसके मुताबिक आपके ऑफर, आपके क्या चांसेस हैं टू गेट वेयर. मतलब अगर ये ग्रेड्स हैं, 3 A's हैं, 2 A's 1 B हैं, वो A's वाले तो नहीं होते जो परेशान होते हैं, दूसरे ही होते हैं बेचारे. तो उनके लिए सारा हमने इसको समराइज़ कर दिया कि ये आपके ऑप्शंस हैं. तो अब बिफोर दे कम इन, वो पेरेंट्स बच्चे आपस में इंटरनल डिस्कशन कर सकते हैं कि अच्छा ये, हाँ अब ये आ गया तो अब ये ऑप्शंस हैं. और एट द सेम टाइम टीम भी, उन यूनिवर्सिटीज़ को भी इन्फॉर्मेशन भेज दी है, तो इन यूनिवर्सिटीज़ भी बता सकते हैं कि अच्छा ये हम कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते. तो जब वो बच्चा अंदर आता है उसका काफ़ी हद तक मामला तब तक सॉल्व हो चुका होता है. सो इस तरह से हमने कुछ टेक्नोलॉजी की चीज़ें इंटीग्रेट करके देखा कि मतलब उसमें हमें कैसे फ़ायदा हुआ. और जो ह्यूमन कनेक्ट की हम बात कर रहे थे, ऑब्वियसली एजुकेशन इज़ नॉट अ बिज़नेस, एजुकेशन बिज़नेस नहीं है, चाहे हम कहें बन गई है या वॉट एवर. बट जो मैंने उनके साथ काम करके देखा कि दे weren't ट्रीटिंग इट लाइक अ बिज़नेस, क्योंकि वो हर स्टूडेंट को एज अ यंगर ब्रदर, एज अ यंगर सिस्टर मेंटोर कर रहे थे. और उस मेंटोरिंग में टाइम भी बहुत लग जाता है. तो विद टेक्नोलॉजी आप वो थोड़ा बहुत टाइम सेविंग कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत प्रोसेसेस को ब्रश करके पॉलिश कर सकते हैं. बट अगेन दे वर नॉट विलिंग टू गिव अप दैट ह्यूमन कनेक्ट कि हमने ये रखना है. एंड उसी का फ़ायदा है, एंड दैट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड एल्सवेयर एज वेल. सो मे बी हमारा द थिंग इज़ कि चाहे हम मार्केटियर्स हैं, चाहे हम ब्रांड के लोग हैं, या चाहे हम बिजनेस ओनर्स हैं, ऑल वी हैव टू डू इज़ दैट थिंक इन द कस्टमर्स शू, कि उसकी क्या फीलिंग है. जैसे यू सेड कि ना, वही जब हम भी जब हमारे ए लेवल्स के या ओ लेवल्स के रिजल्ट्स आते हैं, या जब हम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे होते होंगे, तो हम किस किस्म की फीलिंग्स या एंक्शियसनेस से गुजरते हैं. सो दैट द कंपनी, दैट Naseem Khan consultant that you're talking about, if they're realizing, and then they're, if they're spending 3-4 hours, they're just doing what a really good human being would do. They're firstly behaving like a really good human being, and then secondly, they're working as a business, and then maybe the layer that you help them build, कि अच्छा वही जो मार्केटिंग के अंदर, जैसे वो अगर 100 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनकी क्या यू ऑप्टिमाइज द प्रोसेस, कि अच्छा ये पहले से ही इनकी डिटेल्स हो जाएंगी, वो यूनिवर्सिटी को चली जाएंगी, और वो सारी चीज़ें होंगी. वो प्रोसेस की ऑप्टिमाइजेशन, इट्स पार्ट मार्केटिंग, बट इट्स पार्ट ऑफ अगेन योर एक्सपीरियंस इनके, वो कस्टमर एट द कोर, कस्टमर एक्सपीरियंस एट द कोर, कि उसकी जो टेंशन है, या उसकी जो वरी है, वो रिड्यूस करना. बट would I be wrong to conclude this के again just think like the customer के वो क्या, उसकी क्या नीड्स हैं, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, या वो किस सिचुएशन में है, एंड देन maybe वर्क योर वे इन रिवर्स. उसके बाद आप देखें कि अच्छा अब क्या बात करनी है, या अब जैसे आपने वो प्रोसेस बिल्ड किया, यू रिड्यूस द पेपर वर्क,
और आपने जो भी कैंपेन की, तो देन वर्क इन रिवर्स में बी, एंड देन you would eventually find the right marketing strategy, right business strategy. बट देन आई वुड से इट्स नॉट अ कुकी कटर अप्रोच कि ये हर किसी के साथ वर्क नहीं करता. ऑब्वियसली इसके सेंटर पे ये है कि अच्छे पीपल स्किल्स या लोगों को समझना एक कोर चीज़ है, जो है कि आप लोगों को समझते हो तभी आपको पता है कि किसको क्या अपील करता है. एक और यहाँ पर जो चीज़ आती है वो है एलिवेटिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड या एलिवेटिंग द कस्टमर, जिसे मैं कहूँगी चलें एलिवेटिंग द कस्टमर. जिसके अंदर जब आप कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं ना जो आपको लगता है कि ये कौन समझेगा, मैं बड़े फ़ाइन चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ये किसको समझ आएगी, मैं ये ज़ुबान बोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये किसको समझ आएगी. और जब मैं पाशा में थी, मेरा सबसे बड़ा उनके साथ मसला ये था कि आप इतनी जो बात कर रहे हैं या जो इतना समझ बूझ के आप चीज़ें बना रहे हैं, लोगों को तो पता ही नहीं है कि आप ये कर रहे हैं, नोबडी नोज़. बट उधर मैंने ये जिसने मुझे हेल्प किया इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर वर्क एंड टू हेल्प देम, कि यू नीड टू एलिवेट पीपल. जब आप एक बहुत सुपीरियर लेवल का प्रोडक्ट बेच रहे हैं या जब आप बहुत एक सुपीरियर लेवल की बात कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट द कस्टमर. ठीक है, आप उसके लेवल पे नहीं आना चाह रहे हो कि मैं वो बात करूं जो उसको समझ आए, बट फिर उसको लेके चलो. जिसमें मेरे ये भी ख्याल था व्हेन आई स्टडीड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि हमारे यहाँ इतना टैलेंट है, पीपल आर सो टैलेंटेड, पीपल आर गिफ्टेड. आई मीन लोग बाहर से आउटसोर्स कर रहे हैं हमारे लोगों को काम करने के लिए. वाई कांट वी डू थिंग्स दैट आर ग्राउंड ब्रेकिंग या दैट आर सक्सेसफुल ऑन अ ग्लोबल लेवल? That comes from brands, individuals, organizations elevating customers, taking them along in their storytelling journey. कि उनको पता हो कि ये जो प्रोडक्ट हमें बेच रहे हैं इसकी वैल्यू ये है. जैसे वो कह रहे हैं कि किसी को नहीं पता कैशमेर क्या है या शातूस एंटेलोप से बनती है, बैन हो गया, वट एवर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दें. Make them a part of you, make them a part of your journey, and then it should be a mixture of both things. कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि कस्टमर को क्या चाहिए और आप उसको वो दो, लेकिन आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग हो कि कस्टमर को क्या नहीं पता कि उसको चाहिए, बट सिंसियरली पता हो कि मतलब ये नहीं कि चाहे उसको नहीं चाहिए इतने ब्यूटी प्रोडक्ट्स फिर भी बेचते जाओ, वो बात नहीं. आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम अ सेल्स पर्सपेक्टिव, बट आपको क्या एग्जैक्ट पता हो कि यार इस बंदे की लाइफ, इसकी लाइफस्टाइल, इसकी जर्नी एलिवेट हो जाएगी अगर हम इसको ये इन्फॉर्मेशन दे दें. Like a doctor maybe. हाँ Like a बिल्कुल. doctor maybe, because हाँ like जी, they would not prescribe you something which is harmful for you. They एग्जैक्टली. would just tell you कि अच्छा here is list of drugs, but then this is something that you should do, or this is an activity that you should do that would enhance your experience or improve your health. So I think elevating is a really 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 nice word, because in brand management we do talk about customer experience and brand experience, but then we just talk about कि अच्छा वो how do the customer entrance from the top of the funnel and then goes to conversion, and then we try to retain them. But this the thing like what you're saying, okay, it's not just a transaction, or not like a linear journey or cycle of journeys to get money out of them, but maybe a company or a brand can elevate their lifestyle, their उनका thoughts, स्टैंडर्ड एलिवेट करें, उनको एक्सपोजर दें. हाँ जैसे टिकटॉक बैन हो जाता है, सही. ठीक है, और अब बड़ा अपॉलिंग है कि वेस्टर्न कंटेंट टिकटॉक पे कैसा है. मतलब उस पे जब हम स्पेशली नसीम खान कंसल्टेंसी की मार्केटिंग कर रहे थे, सही. तो उसमें मैंने देखा कि टिकटॉक पे स्टडी टेक्निक्स, ये चीज़ें, मतलब बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से दी जा रही है. सही. फिर आप एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा देखते हो जिसके अंदर आई मीन आई डोंट वांट टू से इट, बट हमें पता है कि टिकटॉक किस तरह के बनते हैं. वी नो सही. कि उसकी उस वर्ड की कॉनोटेशन क्या हो चुकी है, सही है. कि कहीं भी खड़े हो गए, अब ये तो टिकटॉकर्स हैं, ये कर रहे हैं. व्हाई? उनको क्यों नहीं कोई एलिवेट कर रहा? ऐसे उनको पकड़ा तो दिया है टूल, बिल्कुल तो ऐसे अब उनको हेल्प करो, बजाय कि आप बैन कर दो, उनको इंस्पायर करो कि बिल्कुल ये ऐसे कैसे यूज़ करना है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है. ऐसे. A lot of universities and a lot of countries, they're using TikTok for education now, because it's it's very far reaching in that sense. So वो message का अगर tool है, so a lot of universities, they're actually like bringing their courses on TikTok, and then of course there are a lot of trainers coming on TikTok, and then again what you're saying now, I'm just connecting the dot, okay, वो then they're elevating
द स्टैंडर्ड। the standard and their जी, experience. So मतलब ये कोई नहीं कह रहा आप एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस बनाएं, व्हाई नॉट, गो अहेड। एंड ऑब्वियसली उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट होती है जो डिफरेंट लोगों को अपील करती है, बट देन समबडी शुड बी लाइक शोइंग देम कि व्हाट इज़ द प्रॉपर वे, या प्रॉपर भी छोड़ दें कि व्हाट इज़ बेटर, या व्हाट इज़ ये भी मैं नहीं, आई डोंट इवन वांट टू साउंड लाइक कि भाई आप बड़े एलिटिस्ट हो कि ये कंटेंट अच्छा नहीं है, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट एटलीस्ट गिव देम द एक्सपोजर, at least show them what else they can do, rather than ridiculing them, उनका shows पे बुला के मजाक हो रहा है, फिर उनको बैन हो रहा है, like all those things, मतलब elevate करें उनको, that's what I mean। जी, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। नहीं, definitely. I think now before we conclude the discussion, I would want to ask you, because you've been working with founders and business owners, you've worked with different industries as well, skincare, textile, and then consultancy in education. आई थिंक वही चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट करती है कि you started, you emerged from marketing, you came from marketing, but then you mix it with customer experience, you as a consultant and advisor you're able to see कि अच्छा कौन सा process develop करना है, कैसी journey develop करनी है, then you are not just connected with marketing, but then the other thing is कि how do sort of you convince those founders or business owners कि अच्छा देखें दिस इज़ द थिंग दैट यू नीड टू चेंज। वो जो माइंडसेट का चेंज करना होता है और फाउंडर्स के साथ और सी लेवल के साथ काफ़ी मुश्किल होता है कि बिकॉज दे आर द वंस हु आर रनिंग दैट बिजनेस, दे आर द वंस हु स्टार्टेड इट और हैव द विजन, एंड इन सम केसेस दे आर द वंस who've been doing it for decades, and then if you go up to them and tell them कि अच्छा नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं, आपको ऐसे करनी चाहिए, so how do you work with that, and what's been your process? so basically, personally for me, it's a few elements that I look at and I think of. Obviously you should be able to get to that person, you should be able to break through their barrier, उनका जो भी thinking process है आपको पता होना चाहिए। जब आप उनसे बात कर रहे हो आपको पता होना चाहिए उनकी सेंस क्या है या उनकी एक्सपीरियंसेस क्या हैं, तो आपने उनसे किस तरीके से बात करनी है। हर बंदे से बात करने का एक तरीका होता है, या टू गेट टू देम और टू उनको आप, and you should understand that person. So again it comes from having a connect, developing a connect over time with them. Then you should know कि what are their reservations, why don't they want to do a certain thing, ठीक है, उनकी reservations क्या हैं, वो किस चीज़ के बारे में possessive हैं। Sometimes it could be budget, sometimes it could be the product itself, sometimes it could be the resources that you're going to use, कि आप उस चीज़ को understand करो कि what is stopping them and why is it stopping them. और फिर उसका एक ऑब्वियसली फाइनेंशियल एस्पेक्ट बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है कि आप एक कंपनी को जब कहते हो कि जी मैंने ये करना है, वो फाइनेंशियली भी उस चीज़ को देखते हैं कि मतलब ये कैसे करोगे आप, क्या करेंगे। और यूजुअली मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि हम लोगों के यहाँ ये होता है कि हर चीज़ पर अब ये एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हो गया कि भाई आपने बहुत पैसे लगा दिए हैं और रिज़ल्ट बिल्कुल थोड़ा सा आता है, और आपने वो सब चीज़ें टिक मार्क कर दी हैं कि ये भी हमने कर दिया, ये भी हमने कर दिया, ये भी हमने कर दिया। जबकि डिजिटल मार्केटिंग का, सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर ये है कि वो वैल्यू ऐड करे आपके कैंपेन्स में, वो वैल्यू ऐड करे आपके बिजनेस को, जो बिजनेस मॉडल है उसके मुताबिक उसको थोड़ा बहुत अडेप्ट करें। बिजनेस मॉडल तो नहीं भूल जाना, या प्रोडक्ट को तो नहीं भूल जाना ना कि आप क्या कर रहे हो, आपने अपना कोर नहीं भूलना। तो उनको ये रियलाइज़ कराना या उनको ये तसल्ली देना कि जो आपकी रिजर्वेशंस हैं हमें उनके बारे में पता है, एंड वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट वी डू नॉट मेडल विद देम, एंड हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। बट अगेन वो करेज, वो स्टैंड आपको लेना भी पड़ता है। सो इट्स अ मिक्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। इसके लिए जो मैं आपको एक एग्जांपल भी अगर दूंगी तो रिसेंटली पाशा में जब वो उन्होंने कैशमेर शॉल लॉन्च की थी, तो उस पर बहुत डिस्कशन हुई कि उसको कैसे लॉन्च करेंगे, क्या करेंगे, और बड़े बड़े इवेंट्स कंपनीज़ करती हैं, बहुत चीज़ें करती हैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। बट अगेन ये था कि ये लग्जरी प्रोडक्ट है, इस पे इतना काम किया गया है, ये नहीं हमने इतना इसको मैसी बनाना या कैसे करना है, व्हाट कैन वी डू। तो उसमें एक सजेशन थी कि आप मैंने सजेस्ट किया कि हम एक इवेंट करते हैं, बट लेट्स नॉट मेक इट लाइक एन इवेंट कि बुलाया है न्यूज़ को, कास्ट, ये वीडियोज़ बनवाई हैं, ये चीज़ें की हैं, वो चीज़ें की हैं। लेट्स मेक इट वेरी ऑर्गेनिक।
और लेट्स कॉल द पीपल हु वी नो, जो हमारे जान पहचान के हैं, जो प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और उस पे फिर बाबर अली साहब भी आए, सलीमा हाशमी साहिबा आईं, और डिफरेंट उस पे, और बहुत लंबी चौड़ी गेस्ट लिस्ट नहीं थी। और वो यानी कि अपने ही आउटलेट पे किया, अपने ही कंफर्ट जोन में किया उसको। एक टेबल था, उस पे प्रोडक्ट रखा, जिन्होंने जो उसके क्रिएटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व थे वो सब आए, उन्होंने बात की, उसकी छोटी मोटी वीडियोस बनी। And that sort of did really well. That it wasn't, I won't call it an event because it wasn't a big thing. It was a small gathering where people who had similar interests got together and talked about something they were passionate about. तो उनका reservation भी meet हो गया कि जी आपने प्लीज़ इसको बहुत ओवरडू नहीं करना। एट द सेम टाइम एक जो मैं चाह रही थी कि हम चीज़ दिखाएं, उसको शो करें, वो भी हो गया। Exactly, exactly. And to understand that, you don't always know best. You have to have that understanding कि ठीक है, you believe in yourself, you believe in your ideas, but you are willing to be a little bit flexible. And जहाँ पर midway आपने meet करना है कंपनी के साथ, ये नहीं कि जो वो कह रहे हैं scrap कर दो। नहीं, आप you have to, because you don't have to let the essence go away. और एसेंस जो है वो ओरिजिनलिटी से आती है, वो कोर से आती है, और कोर वो ही लोग हैं जिन्होंने मतलब कंपनी बनाई है, वो पैशनेट है उसके बारे में। तो उनके पैशंस को आपने ख्याल करना है। एंड यू कम मिड वे, एंड things do get, some things work out, some things don't, but then you have to take the risk of at least doing it. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नहीं, that's really I think a very balanced and well thought out approach. That brings us to to the end of the podcast. Thank you so much, Humaira, for coming in today, and then sharing all those experiences. And I'm really really happy for your future journey, because it's not often that we see a marketeer like growing in in a way that he or she is very understanding of the customer experience, putting customer at the center, but then building strategies and streamlining process as well. So I think I'm really looking forward to the things and the projects that you will do in future. Thank you so much. I am now working more as a consultant. So I'm working with companies who approach me to make their strategy, to help them develop their digital marketing strategies. That's something that I am working towards. And whenever I get a chance to do such things where I can share ideas and I can learn from others, I also enjoy doing that. So yes, I think it's been a wonderful journey, and obviously it's still going on, and inshallah I look forward to it कि आगे क्या होता है. But I'm very very grateful to you for having me. It's been a wonderful conversation. I think बड़ा मज़ा आया आपके साथ बैठ के गपशप करने का. So yeah, thank you so much for having me. No, thank you so much, and pleasure is mine. Thank you so much for coming in today.